Hello everyone. Today we are going to discuss sonnet number 18. Sonnet number 18 is one of the famous sonnets of William Shakespeare, which is in the volume of sonnet which Shakespeare has written, and altogether Shakespeare has written 154 sonnets. Whenever the term sonnet comes in our mind, we actually starts to bother what a sonnet is. In the initial stage, it is very important to understand that sonnet is a type of poem which is of 14 lines. Remember that sonnet is always a poem of 14 lines. Sonnet was invented in Italy around 11th century AD by a court poet named Giacomo da Lentini. Later on, in the time of Renaissance, sonnet was popularized, and there were three poets named as Dante, Petrarch, and Boccaccio who actually made sonnet very popular in Italy. It was Petrarch who actually uh, gave his enormous contribution in popularizing sonnet, and under his influence, sonnet started to be written by other poets. He actually made a certain system of writing sonnet that we all know, that he uh, categorized his sonnets. He actually made a system of writing sonnets, like he divided his sonnets into two parts. First was a stanza of 8 lines, which is called octave, and the second is the stanza of 6 lines, which is called sestet. So it is actually a Petrarchan mode of writing sonnet, that is, one stanza is of 8 lines called octave and 6 lines of sestet. Later on, many deviations came when sonnet was introduced in England. After that, sonnet was written under the influence of Petrarch. Then it was Edmund Spenser who actually started to deviate the form, and then the time of Shakespeare came when he started to write his sonnets in a particular way. So sonnet number 18 is actually very famous sonnet, and in this sonnet Shakespeare has concentrated his male friend, the Earl of Southampton. So here also Shakespeare has a particular logic of making his friend immortal, and it actually written under the theme of love and the theme of time. So let's study the sonnet number 18 of William Shakespeare. Our poem is Shall I Compare Thee, जिसको सोनेट नंबर 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर सोनेट है शेक्सपियर का, एंड लेट्स सी व्हाट शेक्सपियर सेज इन शैल आई कंपेयर दी सोनेट नंबर 18। देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शेक्सपियर यहाँ पर कहते हैं अपने फ्रेंड, अपने बिलवेड फ्रेंड को, कि क्या मैं आपको कंपेयर करूँ समर के एक ब्यूटीफुल डे के साथ, समर के डे के साथ। In England or in the cold climatic countries like England, the summer is actually commemorated, the summer is actually considered as one of the beautiful day. So यहाँ पर समर जो है वो एक्चुअली ब्यूटी के लिए सिग्निफाई हो रहा है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट समर इज ऑल्सो अ मेटाफर ऑफ ब्यूटी इन द कंट्री लाइक इंग्लैंड। तो शेक्सपियर यहाँ पर कह रहे कि क्या मैं आपको कंपेयर करूँ, अपने बिलवेड फ्रेंड को वो कह रहे कि क्या मैं आपको कंपेयर करूँ समर के एक डे के साथ, माने क्या मैं आपको एक ब्यूटीफुल डे के साथ या ब्यूटी के साथ कंपेयर करूँ। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा लवली हो और उससे भी ज़्यादा वार्म टेम्परेट हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जो समर डे होता है या समर में
जो विंड्स होते हैं, तो समटाइम्स समर में रफ विंड्स भी होते हैं, और वो रफ विंड्स जो होता है वो जो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे होता है या नए अंकुरित जो पौधे होते हैं उसको भी हिला देते हैं, उसको भी झंझोड़ देते हैं. एंड समर लीज हैथ टू शॉर्ट अ डेट. और समर का जो लीज है, लीज का मतलब यहाँ पर पीरियड कह सकते हैं, समय कह सकते हैं. तो समर का जो समय है वो बहुत छोटा होता है. तो इस तरह से ये 4 लाइन को हम लोग क्या समझ सकते हैं कि शेक्सपियर अपने फ्रेंड को कह रहे कि क्या मैं आपको समर के साथ कंपेयर करूं, यानी ब्यूटी के साथ कंपेयर करूं. आप तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, उससे भी ज़्यादा लवली हो, और उससे भी ज़्यादा टेम्परेट वार्म हो. जो रफ विंड्स होते हैं वो तो जो डार्लिंग बर्ड्स होता है मे का उसको हिला देते हैं, और समर का टाइम ऐसे ही बहुत छोटा होता है. समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स. तो कभी कभी जो आई ऑफ हेवन है, यानी यहाँ पर आई ऑफ हेवन सन को कहा जा रहा है. सो कभी कभी जो आई ऑफ हेवन है यानी सन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है या बहुत तेज शाइन करता है. एंड ऑफन हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड. और अक्सर ऐसा भी होता है कि उनका जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है वो डिम्ड हो जाता है या हल्का पड़ जाता है. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस. जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो अपने सुंदरता को कभी ना कभी तो खोता है. बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड. या तो बाई चांस हो, बाई एक्सीडेंट हो, या फिर नेचर ही उसको उसके ब्यूटी से डिप्राइव्ड कर दिया. जैसे ब्यूटीफुल पर्सन एज के साथ जैसे वो ओल्ड होता है तो वो अपना ब्यूटी को खो देता है. तो ठीक वही बात यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि या तो बाई चांस वो अपना ब्यूटी को खो दे, या फिर समय उसके ब्यूटी को छीन ले. बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड. लेकिन वो अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि आपका जो एटर्नल समर है वो कभी नहीं फेड होगा. नॉर लूज पोजिशन. वो अपना पोजिशन, जो आपका पोजिशन है दैट इज़ द ब्यूटी, आप कभी नहीं खोगे. ऑफ दैट फेयर दाउ ग्रोएस्ट दाउ ओएस्ट. तो जो आपका ब्यूटी है, जो आपका पोजीशन है ब्यूटी का, जो आप ओन करते हो वो आप कभी नहीं खोओगे. नॉर शैल डेथ ब्रैग यू वॉन्ड्रेस्ट इन इज शेड. और ना ही जो मृत्यु है वो आपके ब्यूटी को आपसे छीन पाएगी, अपने साय में ले पाएगी. वेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट. लेकिन ये जो एटर्नल लाइन्स जो मैं लिख रहा हूँ ये तो एटर्नल है. एटर्नल दैट मीन्स इमोर्टल, अमर, जो कभी ना मरे. तो मेरा जो लाइन्स है वो तो एटर्नल है, और समय के साथ साथ वो बढ़ता जाएगा, यानी आपका जो ब्यूटी है दैट विल ग्रो. सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आई कैन सी. तब तक जब तक इंसान श्वास ले पाएंगे, ब्रीथ कर पाएंगे, यानी इंसान जब तक जिंदा रहेंगे वो देख पाएंगे या श्वास ले पाएंगे. सो लॉन्ग लिव्स दिस. और तब तक वो जिएगा, माने आपका जो ब्यूटी है वो तब तक जिएगा. एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. और यही आपको लाइफ देता रहेगा. माने आप जो हो वो इमोर्टल हो. समय भी आपके ब्यूटी को छीन नहीं पाएगा, समय भी आपको अगली नहीं बना पाएगा. दैट्स व्हाट द लॉजिक ऑफ शेक्सपियर इज.